Namaskar and a very good evening. Welcome to another episode of Currency Trading with Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. आज हम लोग बात करेंगे about not USDINR but the other three currency pairs जो काफी volatile है and why do traders find it useful to trade those currencies. So without any delay, let's switch right into the presentation. Can I have the PPT please? The agenda is simple. We will talk about why uh, people trade the currency crosses. ये currency cross है क्या? Currency cross means कि simply अगर हम लोग कोई trading करते हैं जो EURINR, GBPINR और JPYINR में है, तो it is known as a cross trading. It's just a term. And then जो major है pairs which I already highlighted, and कौन सी trading strategy is particularly done for these kind of currencies and how to do day trading. And then finally we will conclude it with a live market analysis क्योंकि we have that benefit of time क्योंकि the market is going to close at 5 बजे. So 5 बजे ये market बंद होगा, इसके लिए we have a good 1 hour when we can see the live trading और आज काफी big movements है across the board in all these three currency pairs. तो हम लोग उसका भी discussion करेंगे. So let's first look at Q. Why traders love to trade these four और three currency pairs. एक है आपका volatility क्योंकि यहाँ पे intraday volatility is very high compared to what is the case with USDINR. So it's almost like अगर हम लोग average daily volatility देखें high low range of the day, तो intraday में it is almost double that what volatility we see in USDINR. So that is a major reason क्योंकि traders find it worthwhile to do trading in these three currency pairs. आप अगर ओपन इंटरेस्ट को देखोगे मतलब जो पार्टिसिपेशन है इन द मार्केट दैट हैज गॉन अप सिस्टमैटिकली over the last few months or over the last couple of years क्योंकि people are wanting to trade something which is a little more volatile. USDINR के बारे में हम लोग काफ़ी वेबिनार्स कर चुके हैं जहाँ पे लो वॉलेटिलिटी का बेनिफिट भी हम लोग एक्सप्लेन किया है और उसमें वैसे स्ट्रैटेजी बनता है क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए लो वॉलेटिलिटी इज बेस्ट, बट जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए हाई वॉलेटिलिटी इज बेस्ट, स्पेशली इंट्राडे में. तो उनके लिए ये तीनों करेंसी पेयर्स बिकम वेरी अट्रैक्टिव. बस उस बट if we just consider the margin of these three currency pairs with Nifty and Bank Nifty, तो हम लोग को क्लियर कट इसमें डिस्टिंक्शन मिलेगा. जैसे निफ्टी में 1,10,000 1,12,000 के आसपास एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन है, बैंक निफ्टी में क्लोज टू अ लाख. वहीं पे इन GPINR, EURINR एंड JPYINR इट हॉवर्स बिटवीन 3 to 5,000 के बीच. तो इसके लिए एक हाई लेवरेज ये प्रोडक्ट है और हाई लेवरेज प्रोडक्ट के कारण हाई लेवरेज और हाई वॉलेटिलिटी, इसके लिए पीपल लव टू ट्रेड दीज करेंसीज. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड लेवरेज जब प्रोडक्ट में हाई होता है मतलब जिसमें मार्जिन आपका कम होता है तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, वहां पे इट कैन कट यू बोथ वेज. इफ यू गेट द ट्रेड राइट you can make a better return on your invested margin, but if you get the trade wrong, your losses can also be large on a percentage terms. So keep that in mind. So इसलिए risk management becomes important, something which we will eventually cover in this presentation. Trading hours, ये this is a major benefit. जैसे मैंने बताया कि equity market has already closed, so we cannot show you live trading in equity at 4 o'clock, but we can show you लाइव ट्रेडिंग इन करेंसी क्योंकि करेंसी मार्केट में 5 बजे तक ट्रेडिंग चालू है. सो 15 मिनट पहले 1.5 घंटा बाद ऑफ इक्विटी मार्केट करेंसी मार्केट इज ऑन. सो काफी सारे ट्रेडर्स है जो अपना अभी जैसे अभी दे स्विच देयर फोकस फ्रॉम इक्विटी टू करेंसी. तो दैट इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ द करेंसी मार्केट दैट इट हैज गॉट एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स. ये इंपॉर्टेंट है. मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या है एक्सचेंज में? EURINR, GBPINR, JPYINR, right? So मतलब यूरो अगेंस्ट इंडियन रुपी, GBP अगेंस्ट इंडियन रुपी और JPY मतलब जापानीज येन अगेंस्ट इंडियन रुपी. इसमें आपको वीकली
और मंथली फ्यूचर्स दोनों मिलेंगे, ऑप्शंस भी मिलेंगे। पर अगर हम लोग लिक्विडिटी पे अगर फोकस करें तो मंथ एंड का जो फ्यूचर्स है ना उसमें ही ऑलमोस्ट 99% ऑफ द लिक्विडिटी इज। तो इसके लिए व्हेन यू आर ट्रेडिंग दीज करेंसीज, वो मंथ एंड जैसे अभी अगस्त एंड है, अगस्त 29 एंड है, फिर उसके बाद एक्सपायरी के बाद वो सितंबर एंड का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो एक्सपायर होगा थर्ड लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ। सो उसी में ही पूरा लिक्विडिटी है, उसी को ही लेकर लोग ट्रेड करते हैं। ये तीनों का जो करेंसी का जो एवरेज डेली वॉल्यूम है उसके अगर हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्लियर कट इट इज विजिबल कि जीबीपीआईएनआर और यूरो आईएनआर में ही बल्क ऑफ द ट्रेडिंग होता है। तो इसके लिए ये जो प्रेजेंटेशन है वो जीबीपीआईएनआर और यूरो आईएनआर पे फोकस रहेगा। बट वी कैन यूज द सेम प्रिंसिपल्स और सिमिलर प्रिंसिपल्स जेपीआईएनआर ट्रेड करने में, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली ये 1000 यूरोस और 1000 पाउंड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें टिक साइज चारों करेंसीज के लिए सेम है, क्वार्टर ऑफ अ पैसा, 0.0025। और इसका मतलब है कि अगर एक टिक का मूवमेंट होता है, आपके पास एक लॉट है, तो ₹2.5 का आपको इम्पैक्ट आएगा ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको बोला जाता है टिक वैल्यू। और एक्सपायरी जैसे मैं बोला वीकली और मंथली, बट वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द मंथली बिकॉज वहां पे ही सारा लिक्विडिटी है। एंड द मंथली एक्सपायरी इज द थर्ड लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ। अभी देखिए प्राइस इंक्रीमेंट, तो क्वार्टर ऑफ अ पैसा अप एंड डाउन एक मूवमेंट होता है इन ऑल थ्री करेंसी पे, इनफैक्ट ऑल फोर करेंसी पे इंक्लूडिंग USDINR। तो कैसे ट्रेडिंग होना चाहिए इन दीज करेंसी पेयर्स, यहाँ पे ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो ओपनिंग गैप्स है ना, क्योंकि जब आप यूरो आईएनआर ट्रेड करते हो, जीबीपी आईएनआर को ट्रेड करते हो या येन आईएनआर को ट्रेड करते हो, यहाँ पे तो आप 9 से 5 इसको ट्रेड करोगे। बट इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली ये करेंसी 24 आवर्स इसका ट्रेडिंग चल रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे एक लेग इंटरनेशनल है, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। इसके लिए ये जो तीनों इंटरनेशनल लेग करेंसी, इसी कारण ये तीनों करेंसी पे दे ट्रेड 24 आवर्स। तो हम लोग जब 5 बजे बंद होंगे और कल जब सुबह 9 बजे ओपन होगा, इसके बीच गैप्स विल हैपन। जैसे आपका अगर ये निफ्टी पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे ये गैप्स होता है इन द निफ्टी बिकॉज द मार्केट हैज अ ब्रेक इन बिटवीन। सिमिलरली यहाँ पे भी द गैप्स आर मच लार्जर, इसके लिए ओपनिंग गैप्स आर ह्यूज और वहां पे पूरा ट्रेंड ओवरनाइट कैन चेंज। सो अगर वो सिचुएशन है जहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी और हाई चांस ऑफ अ बिग गैप अप और गैप डाउन है, तो कैसा ट्रेडिंग होना चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा विच काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग वन नीड्स टू डू। इट हैज टू बी अ डे ट्रेड, मतलब it is our advice and my experience that कि आपका जो ट्रेडिंग है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू एंड इवन इफ यू आर अ वेटरन, इट इज बेटर टू स्टिक टू डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देन टेकिंग कैरिंग पोजीशंस फॉर ओवरनाइट। क्योंकि हम लोग जनरली इक्विटी मार्केट से आते हैं, राइट। सो इक्विटी मार्केट से ये एक दिमाग में एक चीज घुसा हुआ है कि वी हैव टू टेक अ पोजिशनल व्यू। बट लेट मी टेल यू, ये मार्केट इज बेस्ट suited for traders who take a intraday view, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग गैप्स है दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। और जब रात को यूएस मार्केट ओपन्स, वहां पे इतने सारे डेटा पॉइंट्स कम, राइट। तो उसका प्लस इन द मॉर्निंग व्हेन जापान ओपन्स, वो पूरा डेटा पॉइंट्स का इम्पैक्ट वी कांट कंट्रोल in with our position. So why take that unnecessary risk? It is much better to trade intraday, क्योंकि intraday में आप अपना स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। ओवरनाइट में योर स्टॉप लॉस हैज नो मीनिंग बिकॉज यू आर नाउ अ विक्टिम ऑफ लक। अगर कुछ अनटूवर्ड इवेंट हो और ये 1% या 2% से मूव कर जाए, तो यू कैन एंड इट्स मूव्स अगेंस्ट यू। मतलब आपके पास मान लीजिए जीबीपीआईएनआर में शॉर्ट पोजीशन है और ये गैप अप कर दिया ₹1 या ₹1.5 या ₹2, तो then you can incur huge losses. So इसके लिए it's better to trade intraday than taking positional bets, क्योंकि यहाँ पे continuously trends keep flipping, क्योंकि न्यू फैक्टर्स आते हैं। दिस इज नॉट इक्विटी ट्रेडिंग जहाँ पे आप बता सकते हो कि XYZ स्टॉक है, इसका तो बुल रन है, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। दैट काइंड ऑफ अ व्यू विच यू कांट। इट्स लाइक
it's like using the principles of driving a motorcycle to drive a aircraft. Like आप अगर प्रिंसिपल्स जो जैसे एक मोटरसाइकिल को चलाया जाता है वही प्रिंसिपल्स लेके एयरक्राफ्ट में आप उड़ाने जाओगे तो क्या होगा, क्रैश. तो सेम थिंग. सो द करेंसी मार्केट इज लाइक फ्लाइंग अ एयरक्राफ्ट. Equity market investing is like riding a motorcycle. Both have their own challenges, but you cannot carry one knowledge to the other. That is very important. And यहाँ पे maximum गलती होता है. They think like a motorcyclist when they are flying a aircraft, and that's why it crashes. So इसके लिए it's my suggestion that to stick to intraday trading. Sometimes एक major theme can emerge. जैसे last year it was Russian जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसके वजह से वी सॉ अ बिग सेक्युलर डिक्लाइन इन द यूरो, जीबीपी, ऑल द यूरोपियन करेंसीज. वो सब ट्रेंड में आप जो छोटा एक पोजीशन लेके कैरी कर सकते हो. बट व्हेन देयर इज जनरली इट हैज बीन सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बेटर टू स्टिक टू इंट्राडे ट्रेडिंग. तो ये जो यूरो आईएनआर है ये बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू करेंसी पेयर्स. ये जानना बहुत जरूरी है. मतलब अब जब यूरो आईएनआर ट्रेड करते हो आप दोनों करेंसी पेयर्स में पोजीशन ले रहे हो बाय डिफॉल्ट एंड यू आर हैव टू हैव अ व्यू ऑन द टू करेंसी पेयर्स. क्योंकि ये बेसिकली देखिए करेंसी मार्केट एक पेयर ट्रेडिंग है, नेचुरल पेयर ट्रेडिंग है. इसलिए आप बोलते हो यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर. यू डोंट से यूएसडी, यूरो. जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटीज करते हो, तो वहां पे इट इज एब्सोल्यूट. यहाँ पे इट इज बाय डिफॉल्ट अ पेयर ट्रेडिंग. तो इसके लिए जो यूरो आईएनआर है ना वो यूरो यूएसडी जो द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड, उसके साथ जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होता है, हाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होता है एवरी डे. लाखों करोड़ों डॉलर का ट्रेडिंग होता है इन यूरो डॉलर एवरी डे इन द वर्ल्ड ऑल अराउंड द मेजर मार्केट्स. तो वो करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी. उसके साथ यूएसडी आईएनआर. ये दोनों पेयर का कॉम्बिनेशन को बनाता है यूरो आईएनआर, राइट. सो हाउ टू ट्रेड, जैसे हम लोग को समझ में आ गया डे ट्रेडिंग इज अ बेटर वे देन अ पोजिशनल ट्रेड. तो अगर आप टेम्पलेट यूज करोगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है कि जब यूएसडी यूरो यूएसडी का डायरेक्शन एक तरफ हो या USDINR is flat and Euro USD is rising, और ये दो इंपॉर्टेंट है. मतलब दोनों जो इंजन है इसका, अगर दो इंजन है, एयरक्राफ्ट है, यूरो आईएनआर एक एयरक्राफ्ट है और यूरो डॉलर और USDINR दो इंजन है, तो दोनों इंजन को एक ही तरफ मूव करना पड़ेगा फॉर यूरो आईएनआर टू बेनिफिट मोस्ट. तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ ट्रेड इन यूरो आईएनआर. अगर यूरो डॉलर ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है, USDINR का भी एक्सपेक्टेशन है इट विल गो अप, तो देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन यूरो आईएनआर बिकॉज दोनों विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द यूरो आईएनआर. सिमिलरली आपका व्यू ये है कि यूरो डॉलर विल फॉल, USDINR विल फॉल. तो आज ये देखने को मिला, देन इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू शॉर्ट यूरो आईएनआर. बट एटलीस्ट ऐसा हो कि आपका यूरो डॉलर का व्यू है कि आप जाएगा और USDINR विल बी फ्लैट, या यूरो डॉलर का व्यू है नीचे जाएगा, USDINR विल बी फ्लैट. तो देन आल्सो यू कैन टेक अ पोजीशन इन यूरो आईएनआर. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए ये वैल्यू मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका प्राइस, जैसे यूरो डॉलर का प्राइस ऊपर चला गया, USDINR इज फ्लैट, द यूरो आईएनआर इंक्रीज, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ जीबीपी डॉलर, सेम थिंग. जीबीपी डॉलर और USDINR कंबाइन करके बनाता है जीबीपी आईएनआर. तो अगर आपको ट्रेड लेना है इन जीबीपी आईएनआर, यू शुड form a view in GBP dollar and have a view in USDINR. It's very important. सेम थिंग कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इम्पैक्टेड होता है. जैसे जीबीपी डॉलर का प्राइस 20 ये 1.2625 से 1.2675 अगर मूव हुआ तो 50 पिप का अप मूव है. USDINR इज फ्लैट, GBPINR इंक्रीजेस.
So that's how you can trade. Now how to trade, यही मैं आपको बता रहा था कि when to trade. We have understood what kind of a strategy to do, कैसे आपको प्राइस व्यू बनाना है. अभी थर्ड है व्हेन टू ट्रेड, कि जो मैं एक बार आई हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन दिस अ बिट, कि यूरो आईएनआर इज अ फंक्शन ऑफ यूरो डॉलर और यूएसडी आईएनआर. तो एक्सपेक्टेशन है क्या है यूरो डॉलर में, व्यू अपवर्ड है. एक्सपेक्टेशन क्या है यूएसडी आईएनआर में, अपवर्ड है. तो इट्स अ क्लियर कट, इट्स अ वेरी स्ट्रांग बाय. अगर जस्ट उल्टा है कि यूरो आईएनआर में, यूरो डॉलर में एक्सपेक्टेशन है डाउनवर्ड, USDINR में एक्सपेक्टेशन है क्या है डाउनवर्ड, सो इट्स अ क्लियर कट सेल. सो बट अगर ऑपोजिंग व्यू है कि यूरो यूएसडी अपवर्ड, USDINR डाउनवर्ड, देन इट इज बेटर टू अवॉइड. ऑपोजिट व्यू नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक फ्लैट, एक में क्लियर व्यू, देन यू कैन ट्रेड द यूरो आईएनआर. एंड दोनों एक ही तरफ तो फैंटास्टिक ट्रेड, बट अगर दोनों ऑपोजिंग साइड, अवॉइड. That's very important. Same for GBPINR, GBP dollar, USDINR. एक साइड, सेम साइड, स्ट्रॉन्ग ट्रेड. अगर एक फ्लैट है, दूसरा ऊपर नीचे का एक्सपेक्टेशन है, गुड ट्रेड. बट दोनों ऑपोजिंग है, इग्नोर, अवॉइड. सो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि यूरो आईएनआर इज अ गुड प्रॉक्सी ऑफ यूरो डॉलर. बट कब, नॉट ऑलवेज. जब USDINR is either expected to move in the same direction or remain flat. GBPINR के लिए सेम चीज. GBPINR is a fantastic proxy of GBP dollar. But कब, जब USDINR is either in the same direction or it is flat. अगर opposite है, just avoid. Now things to track. This is important, क्योंकि दिस विल एक्चुअली गिव अस आइडिया कि एक जो फंडामेंटल पार्ट है और जो टेक्निकल पार्ट है उसको कैसे कंबाइन किया जाए. देखिए, इकोनॉमिक डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आज इकोनॉमिक डेटा था और आज USDINR में भी काफी मूवमेंट है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट है. इसके कारण यूरो जीबीपी इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है. जीबीपी हैज फॉलन बाय ऑलमोस्ट लाइक ₹1.30 व्हेन आई लास्ट सॉ. So this was a big move day and this was a perfect matrix. हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जब I'll show you the live market. So this is the matrix to watch कि आपको क्या ट्रैक करना है. इकोनॉमिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा इकोनॉमिक डेटा, I'll come to that. चार्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि करेंसी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स कम एंड इम्पैक्ट ना, कि इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू फॉर्म अ व्यू ऑन अ रियल टाइम बेसिस जस्ट फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर. इसके लिए एक, मैं इसको शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, मैं उसको एक लाइव टेस्ट बोलूंगा ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. वो है टेक्निकल एनालिसिस. मतलब चार्ट्स आर इजीली अवेलेबल, ट्रेडिंग व्यू है, कोटक सिक्योरिटीज का टर्मिनल है जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. तो उसको कंबाइन करके आप एक बहुत ही प्योर व्यू बना सकते हो ऑन द प्राइस एक्शन. मतलब प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, जो भी बंदा हो, वो हेज फंड हो, वो कॉर्पोरेट हो, वो इंडिविजुअल हो, इन्फॉर्म्ड हो, नॉट सो इन्फॉर्म्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नॉविस हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली तो उसको मार्केट में आके ट्रेड करना पड़ेगा. अगर मार्केट में आके वो पोजीशन लेगा, बाई और सेल, उसका एक फुटप्रिंट बनेगा. मतलब एक, आप मान लीजिए मार्केट इज लाइक अ क्राइम सीन. ठीक है, क्राइम सीन होता है, तो क्राइम सीन में आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, तो आपका जो फॉरेंसिक टूल है ना, वो है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स. वो आपको बताता है कि फुटप्रिंट क्या है, ट्रेंड क्या है, कि मार्केट का दिशा और दशा दोनों ये बतलाता है, वो है द चार्ट्स. So charts is a fantastic unadulterated view of the markets. If somebody knows how to do technical analysis, a very powerful tool. तो इसके लिए, and it is widely available, as I said, कोटक सिक्योरिटीज है, ऑनलाइन इतने सारे फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका tradingview.com है, एक्सेट्रा. सो उसमें आप इजीली यू कैन एक्सेस द चार्ट्स. तीसरा चीज क्या है, ओवरऑल रिस्क सेंटिमेंट. एंड चौथा, ऑफ कोर्स, अ व्यू ऑन द USDINR. एक एक को बारीकी से देखते हैं. कौन सा इकोनॉमिक डेटा. देखिए, यूरोजोन में
काफी सारे डेटा रोज आते रहते हैं। उसमें जीडीपी, पीएमआई, आज फ्लैश पीएमआई, मतलब आज पीएमआई इंडिकेटर्स था। पीएमआई क्या दर्शाता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये बेसिकली इज अ इकोनॉमिक सर्वे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का किया जाता है, एंड इट इज रिलीज्ड बाय क्लोज टू द एंड ऑफ द मंथ, और द लेट्स से द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ द मंथ। जैसे आज अगस्त का पीएमआई आया, अगस्त इज स्टिल ऑन, so it is known as a flash PMI, मतलब फर्स्ट प्रिंट ऑफ द PMI मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का। ये बताता है कि सेक्टर में चल क्या रहा है, इज इट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इज इट गेटिंग वीकर, और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट कम्स ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसका इम्पैक्ट ऑन द यूरो एंड पाउंड कैन बी ह्यूज। अगर एक क्लियर ट्रेंड अगर दिख जाए द इकोनॉमिक डेटा PMI में, जर्मन IFO अगेन एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है, बिजनेस सेंटिमेंट इंडिकेटर, इन्फ्लेशन है, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजंस है, एंड वेरियस ईसीबी मेंबर्स का कमेंट्री है जो आता रहता है। ये सब चीज मतलब इकोनॉमी और सेंट्रल बैंक, इन दोनों के ऊपर जितने सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, वो जैसे जैसे रिलीज होता है उसका इम्पैक्ट आता है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है यूरो और जीबीपी का, कि इसका जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, ईसीबी और ईसीबी का रेट डिसीजन के अलावा, वो 5 बजे के पहले आता है, जैसे बिटवीन 11 एंड 5। इसके लिए वी गेट टू ट्रेड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा। यूएस का जो डेटा है वी आर नॉट एबल टू ट्रेड येट बिकॉज वो 5 बजे के बाद आता है, बट यूरोप का जो है ना, जो यूरो और जीबीपी को इम्पैक्ट करता है, वो कम्स बिटवीन 11 AM एंड 5 PM, तो ये 6 घंटे के अंदर। सो वी गेट टू डू अ लॉट ऑफ डे ट्रेडिंग इन दिस ऑन दिस डेटा। तो यहाँ पे आप एक इकोनॉमिक कैलेंडर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फॉरेक्स फैक्ट्री का भी है, डेली एफेक्ट्स का भी है, कितने सारे साइट्स का है। तो आप आराम से एक इकोनॉमिक कैलेंडर बना के आप देख सकते हो। मैं आपको इसका एक लाइव डेमो दूंगा एट लास्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस का मैं बात कर रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखिए आप, अब सिंपल ट्रेंड लाइन एनालिसिस आप काफी कुछ समझ सकते हो। दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बट आप शायद ऑलरेडी मे बी यूजिंग इट इन योर ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज, कमोडिटीज और इक्विटीज। So you understand the power of technical analysis, और charts are easily available on Kotak Securities का platform. So, but यहाँ पे देखिए there are big trends which happen, और volatility is extremely high. आप चार्ट से आपको समझ में आ रहा है। तो जनरली ये हम लोग एक सैम्पल ट्रेड्स हम लोग बताते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दो ट्रेड में, वो है स्टॉप लॉस लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना आप अगर ट्रेड लोगे तो फिर यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर गैम्बलिंग, एंड व्हेन यू गैम्बल यू नो द हाउस ऑलवेज विंस, व्हिच इज हाउस इज द मार्केट। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसलिए, देखिए ये मेरा hypothesis है, I have not done the actual data testing on that, but I won't be surprised if less than 1% of the derivative traders, जब मैं derivatives का बात करता हूँ मतलब equity, currency, commodity तीनों मार्केट को मिला के, less in my it is my hypothesis, it's not a data crunch statement, मैं ये बताना चाहता हूँ hypothesis and experience that less than 1% of all who trade derivatives भारतवर्ष में, if you take a 5-year or plus period, less than 1% is able to generate wealth. Less than 1%. Look at the number, 99 versus 1 or less. क्यों? The reason being lack of risk management. एक reason number 1. Reason number 2 is not knowing how the market behaves. यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग ये बताएं कि EURINR, GBPINR और JPYINR is ideally suited for day traders. तो यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर्स है ना, उनका रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ दोस ओपनिंग गैप्स। सो इसके लिए डे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ट्रेड दैट मार्केट, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम। So risk management is number one reason why less than probably 1% of the people who trade derivatives finally create wealth. I'm not talking about the investors. Investors don't trade derivatives. In investment मतलब ही है cash.
इन्वेस्टमेंट कभी डेरिवेटिव से होता नहीं है. If somebody says that they do investment through derivatives, either they are fooling others or they are fooling themselves. So investments always happen through cash. कभी leverage लिया जा सकता है because of other reasons to augment the returns, but derivatives के through investment नहीं होता है. Derivatives सिर्फ speculation और trading होता है, which is a fantastic thing, provided you know how to manage your risk. आप इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल्स लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है, यू फाइंड अ ग्रेट वैल्यू, यू कीप बाइंग at every dip because it's a great value. Something is valuable at X price, at X minus it is even more valuable, provided you got your value right. बट ट्रेडिंग में वो कभी नहीं चलेगा. लोग करते क्या है, वही गलती करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल जाके ट्रेडिंग में लगाते हैं, वो जाके एवरेजिंग करते हैं, और फिर naturally less than 1% are able to create wealth. So 99% or more lose their hard-earned money in the markets in derivatives. So it's very important. It's a high reward game but a high risk game. This is very important. We have to understand equity, currency, commodity, तीनों same है. द डिफरेंस इज करेंसी में आप अगर अपना लॉट साइज को छोटा रखोगे ना, तो आपका जो, क्योंकि हर बंदे के पास एक टाइम स्पैन है ओवर विच ही नीड्स टू स्पेंड टू लर्न द मार्केट, मतलब उसको बोला जाता है एक लर्निंग कर्व. तो आपको एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन द मार्केट वेर यू लर्न हाउ इट वर्क्स. तो ये क्या है कि आपका जो करेंसी मार्केट है उसमें जो टोटल मार्जिन डिप्लॉयड है वो आपका कम रहेगा इफ यू कीप योर लॉट साइज स्मॉल, क्योंकि 3,000 से 5,000 का आपका आपका मार्जिन ये रिक्वायर्ड है. सो आप अगर 10 लॉट से स्टार्ट करते हो, 15 लॉट से आप स्टार्ट करते हो, तो फिर 30,000 50,000 के अंदर ही आपका रिस्क कैपिटल बना रहेगा, जहाँ पे आप यू कैन लर्न. बिकॉज जब आप लर्निंग करते हो तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी. इफ यू मेक मनी फैंटास्टिक, बट द ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न द प्रोसेस जो आप स्केल अप कर सकते हो. तो कंपेयर टू करेंसी, कमोडिटी एंड इक्विटी, इक्विटी एंड कमोडिटी में आपका जो मार्जिन डिप्लॉयमेंट रहेगा ना, द कैपिटल टू लर्न विल बी वेरी हाई. So automatically your loss which you have to take during the learning phase can be high. करेंसी में आप अगर टोटल लॉट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हो कि 15 लॉट्स या लेस, तो आपका टोटल मार्जिन एट रिस्क बिकम्स लोअर. सो कीप दैट इन माइंड. सो दैट इज अ मेजर एडवांटेज कि काफी सारे लोग जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एंड दे नीड अ मार्केट टू प्रैक्टिस आउट देयर आइडियाज, मतलब आप एक थियोरी और प्रैक्टिकल का एक बैलेंस बनाना चाहते हो, तो करेंसी मार्केट कैन बी अ फैंटास्टिक थिंग, क्योंकि इट्स अ डेरिवेटिव्स मार्केट. आप अगर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का ट्रेडिंग समझ गए करेंसी में, तो उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सटेंड करके आप इक्विटी और कमोडिटीज में सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो. तो इसके लिए दिस इज अ फैंटास्टिक मार्केट बट लो मार्जिन डिप्लॉय करके आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग को सीख सकते हो, इंक्लूडिंग द यूएसडी आईएनआर. तो अभी हम लोग वी विल नाउ फ्लिप टू द लाइव ट्रेडिंग. वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कोटक सिक्योरिटीज का न्यू प्लेटफॉर्म को यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, हाउ यू कैन यूज चार्ट्स ऑन द इंटरनेट साइट्स लाइक ट्रेडिंग व्यू एंड ट्रैक द फॉरेक्स न्यूज एंड एक्सेट्रा. So now this is the कोटक नियो साइट. एक बार उसका होम पेज में हम लोग चलते हैं. देखिए होम पेज ऐसा है. तो इसमें इफ वी, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वॉच लिस्ट. हम लोग बात कर रहे हैं ये यूरो आईएनआर, जीपीआईएनआर और जेपीआईएनआर का. और देखिए आज का मूव्स, 1 रुपये 1 रुपी 38 पैसा, 1.3% का मूव. यूरो आईएनआर 1% डाउन, जेपीआईएनआर इज फ्लैट, राइट. तो बड़ा मूवमेंट कहाँ पे, ये यूरो आईएनआर और जीपीआईएनआर में. और आज USDINR भी है डाउन. सो दिस वाज अ परफेक्ट डे जहां पे आप वो प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि USDINR इज फॉलिंग, यूरो डॉलर इज फॉलिंग, जीबी डॉलर इज फॉलिंग. तो जीपीआईएनआर और यूरो आईएनआर इज गोइंग टू मूव हाई बीटा.
एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये मूवमेंट, ठीक है, आप अगर एक में क्लिक करते हो GBPINR, तो ये ऐसे आपका चार्ट आ जाएगा। इफ यू वांट टू सी अ बेटर चार्ट, जस्ट क्लिक हियर, व्यू डिटेल चार्ट। दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है फॉर ट्रेडर्स। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये आपका लाइव चार्ट ओपन हो रहा है। एक मिनट इसमें। हाँ, सो द चार्ट अगेन, ये मैक्सिमाइजिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे को, क्योंकि आई एम डूइंग प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए शायद। बट अदरवाइज इफ यू क्लिक हियर, इट विल क्रिएट अ न्यू टैब, एंड देन you can see the entire chart on a लार्जर प्लेन। बट ये चार्ट में आप इंडिकेटर्स भी लगा के, जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ ट्रेंडिंग के लिए, दो मूविंग एवरेज आई टेक, एनी लाइक यहाँ पे आई हैव टेकन अ 10 एंड 20, इट्स अप टू यू। बट जनरली दो मूविंग एवरेज में एक एटलीस्ट एक हाफ ऑफ अनदर, इट कैन बी हाफ, सो इट कैन बी ट्वाइस ऑफ दैट और थ्राइस ऑफ दैट, नॉट बियॉन्ड दैट। सो दो मूविंग एवरेज लिया, जैसे 10 एंड 20, और मैं एक्सपोनेंशियल इसलिए लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक इट सेंसिटिव टू प्राइस। तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, दैट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी ऑफ द प्राइस, मतलब वो प्राइस को स्मूदन कर रहा है। और जो लॉन्ग टर्म है वो मुझे बता रहा है ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है, ट्रेंड इसके लिए क्योंकि वो एवरेजिंग है, एक स्लोप है, एक पर्टिकुलर वो दिशा बता रहा है। तो एक इज अ प्रॉक्सी ऑफ प्राइस, दूसरा इज अ ट्रेंड which it talks about in the price। ये दोनों का कॉम्बिनेशन along with the price itself मुझे बता सकता है कि अगर ट्रेंड है तो किस साइड है। क्योंकि हर वक्त ट्रेंड इसमें आपको आपको मिलेगा नहीं, राइट, बिकॉज देयर विल बी फेजेस जब इट विल बी इन अ रेंज। जैसे यहाँ पे था, इट्स इन अ रेंज, देन इट वेंट अप अ बिट एंड इट कोलैप्स। जैसे आज देखिए इसका मूव, going down 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 since morning, it opened at 105.28, अभी है 104.52, मतलब ऑलमोस्ट 80 पैसे का मूव हो चुका है। तो इसमें आप ऑप्शंस भी है, बट जीपीएनआर ऑप्शंस में स्टिल आपका लिक्विडिटी है, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। सो आई वुड से इफ यू आर डूइंग डे ट्रेडिंग, इट इज बेटर टू स्टिक टू फ्यूचर्स। सेम फॉर द यूरो आईएनआर। अभी हम लोग देखते हैं कि इफ यू वांट टू ट्रैक न्यूज़, ये है इज अ गुड साइट फॉर न्यूज ऑन FX, forexlive.com, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड यू कैन गेट द ग्लोबल न्यूज ऑन इट। ये आपका न्यूज। सो ये है आपका न्यूज। फॉरेक्स लाइव इज अ गुड साइट। नाउ इफ यू वांट टू सी आज का क्या डेटा था, फॉरेक्स फैक्ट्री, इसको हम, ये देखिए आपका filter, इसको यूरो, GBP, USD करेंसी से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। टाइम आप सेट कर सकते हो। आप लॉग इन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो लोकल टाइम है, यहाँ पे आप एक लॉगिन आईडी बना लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो लोकल टाइम है उससे वो मैच कर लेगा। तो वी कैन इग्नोर द टाइम एंड सी द डेटा, क्योंकि ये GMT है। सो ये देखिए आज जो था ना डेटा, तो मैं इसको और फिल्टर थोड़ा सा और करता हूँ, एज पर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ये देखिए फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंच, जर्मन, यूरो, GBP, सबका जो डेटा था ना, स्पेशली ऑन द सर्विसेज साइड, वो काफ़ी खराब था।
इसके कारण वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूव। ये देखिए यूरो डॉलर में शार्प फॉल, जीबी डॉलर में शार्प फॉल, और यूएसडीआईएनआर में भी आज फॉल था बिकॉज इनिशियली आरबीआई का सेलिंग था, फिर कॉर्पोरेट इनफ्लो वाज देयर ऑफ डॉलर्स, और उसके बाद क्या हुआ 80 टू 90 ब्रेक होते ही स्टॉप लॉसेस स्टार्टेड गेटिंग हिट 80 टू 90 से 80 टू 80 तक, and so you had a fall in the USDINR, you had a fall in euro dollar, GB dollar. तो हुआ क्या कि once the data came out, French or German or UK का PMI data, then a lot of people started to short. हम लोग भी we went short, we chose GBPINR to short क्योंकि GB dollar में view ये था कि ये और sell off आ सकता है because the data is bad, and USDINR anyways was looking downward. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जीबी डॉलर फेल एज एक्सपेक्टेड, और यूएसडीआईएनआर में भी एक बड़ा फॉल आया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में जीबीपीआईएनआर इज डाउन बाय 1.3%। अभी मैं दिखाता हूं आपको चार्ट्स। अब जैसे मैं आपको दिखाया कोटक सिक्योरिटीज का, कोटक नियो प्लेटफॉर्म में आप एक्सेस कर सकते हो। आप आपको अगर कोई और साइट से एक्सेस करना है, आपको यहाँ पे एनएसई करेंसी का चार्ट नहीं मिलेगा। एनएसई करेंसी के लिए आपको कोटक सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। बट इफ यू वांट टू सी इंटरनेशनल करेंसीज चार्ट, जैसे आपका मान लीजिए यूरो डॉलर, तो यू कैन सी दिस। तो दिस इज tradingview.com। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, बट आई फाइंड द ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस टू बी नाइस। ये देखिए, ये इतना बड़ा जो एक मूव था, ये जो इतना बड़ा एक मूव था, दिस हैपेंड आफ्टर द डेटा आज। सेम फॉर जीबीपी यूएसडी, big move after data. So accordingly, data, charts और न्यूज। सो डेटा, चार्ट्स, न्यूज, इससे आप एक व्यू बना सकते हो कि क्रॉस करेंसीज में, मतलब यूरो आईएनआर, जीबीपीआईएनआर में क्या ट्रेड लेना चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन यूएसडीआईएनआर। तो यूएसडीआईएनआर को अगर हम लोग चेक करें, तो व्हाट हैपेंड इन यूएसडीआईएनआर इज दिस शार्प फॉल, continuous selling, continuous selling. So इसके कारण a short trade in EURINR and GBPINR was a viable one. So with this, I'll conclude the presentation and open the floor for question and answers. Yeah. So you can आप ये chat में question आप पूछ सकते हो। यहाँ पे जो chat है, you can ask the questions here. Yes, ये गौरव जी का एक क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि आज ही सॉ द बिग मूव इन द जीबीपीआईएनआर, सो ही स्टार्टेड टू ट्रैक द जीबीपी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग दो करेंसीज को ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यो जीबी डॉलर और यूएसडीआईएनआर का क्या मूवमेंट हो रहा है, टू फॉर्म अ व्यू ऑन जीबीपीआईएनआर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर यशवंत कि हाउ द सेटलमेंट हैपेंस ऑन एक्सपायरी। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, करेंसीज में कोई भी करेंसी हो, ये कैश सेटल्ड है। ये जो आरबीआई का रेफरेंस रेट आएगा और 12:30
ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, मतलब द थर्ड लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। मैं मंथ एंड फ्यूचर्स का बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एंटायर लिक्विडिटी है। तो थर्ड लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ, जैसे अगस्त के लिए 29 है, 29 को है, 12:30 बजे RBI is going to release its RBI reference rate. So वो RBI reference rate is going to be important to settle the contract. तो it is basically a cash settlement जो होता है, कोई डिलीवरी इसमें है नहीं। ओपन इंटरेस्ट चार्ट, यस, उसमें आपका इंडिकेटर है, आप ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हो। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं बताया कि ऑप्शंस आर नॉट दैट लिक्विड, तो वो आपको वो स्ट्राइक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओपन इंटरेस्ट वोंट मेक मच सेंस, बट आपका ओपन इंटरेस्ट एज अ इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, राजीव जी। There is a question from Mr. Punita. He's asking that biggest gains in currency happen either because of data or opening gap of down. If we stay away from these, what is the profit potential? See, profit potential. See, trading is a skill, और कोई भी स्किल यू हैव टू बिल्ड ओवर टाइम। तो हम लोग क्या क्या प्ले करते हैं एज अ द रोल जो हम लोग का है एज अ ब्रोकर, वी गिव यू अ गुड प्लेटफॉर्म एंड वी गिव यू द नेसेसरी गाइडेंस। बट रिमेंबर, ट्रेडिंग इज अ स्किल, एंड स्किल खुद को डेवलप करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स का मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग आप किसी के साथ कर सकते हो, ट्रेडिंग किसी के साथ नहीं आप कर सकते। ट्रेडिंग इज लाइक अ वॉर, इट्स लाइक अ युद्ध। तो वॉर में यू कैन नॉट टेक अनदर पर्सन एंड आस्क हिम टू शूट। यू हैव टू बी द सोल्जर और द कमांडो, और आपको इधर जो भी करना होगा, शूटिंग करना होगा, जो भी करना होगा, आपको एस्केप करना होगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप द स्किल एंड टेक टाइम टू डेवलप द स्किल। तो इसके लिए डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन द मार्केट्स। मैं क्यों बोला कि लेस देन 1% ऑफ द पीपल जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स, 5 साल के बाद दे एक्चुअली मेक मनी। ऐसा क्या है वो 1% के साथ जो 99% आर अनेबल टू डू? मैं इक्विटी, करेंसी, कमोडिटीज तीनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। इसके बाहर तो और कोई डेरिवेटिव्स मार्केट है नहीं इंडिया में। तो फिर ऐसा क्या है वो 1% के साथ जो 99% आर अनेबल टू डू? वो है कि ये जो दे लर्न द थिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनका फोकस होता है प्रोसेस पे कि मैं कैसे अब एक स्किल सेट बनाऊं। शॉर्टकट नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट से ट्रेडिंग में आपको एक बार दो बार पैसा मिलेगा, फिर वो लेके चला, बिकॉज इट्स लाइक गैम्बलिंग। आप जब कैसीनो में जाते हो तो कैसीनो में आपको पहले 2-3 दाव आपको दिया जाता है, मतलब यू विन, तो आपको टेस्ट लगता है विनिंग का, तो यू गैम्बल मोर एंड फाइनली यू लूज एवरीथिंग एंड मोर। सो द सेम थिंग, तो आप अगर कोई शॉर्टकट लोगे इन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ एनी काइंड, तो इट्स गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग में for you to make money over a long period of time, the probability is very 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 low. So इसके लिए आपको इसको ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के हिसाब से अप्रोच करना है, तो सिस्टमैटिकली अप्रोच करना पड़ेगा। स्किल से आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि उसका फंडामेंटल्स को समझूं, मार्केट को समझूं, कैसा ट्रेडिंग होना चाहिए उसको समझूं, टेक्निकल एनालिसिस को समझूं, बिकॉज इट्स लाइक ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, धंधा। आप अगर कोई भी धंधा में घुसना चाहते हो, बोलोगे आज मैं घुस गया, कल मैं करोड़पति इसमें बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और स्किल सेट अपना डेवलप करना है। पेशेंस आप अगर खो दिए तो आपका पैसा भी आपका आपके साथ पेशेंस खो दे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज अ प्रोफेशन, बिकॉज व्हेन यू लुक एट अ स्क्रीन आपको पैसा दिखता है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको पैसा दिखता है ऑन द स्क्रीन। कोई अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड कांट शो यू मनी ऑन स्क्रीन। इसका टेम्पटेशन बहुत खतरनाक है, लाइक इट्स लाइक अ ड्रग। बट आप अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किए तो इट्स अ फैसिनेटिंग अपॉर्चुनिटी। बट उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको चीज़ों को समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद
Otherwise, it's better you do investments. Investments means no derivatives, only cash equity. वो होता है investments, right? So derivatives में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर नरेश जी अभी तक वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. इट्स ऑन द पाइपलाइन. इट विल बी it's under consideration because it takes time to develop. So yes, it's definitely under consideration, the trailing stop loss feature. Market close time, अंसारी जी, it is at 5 बजे. अभी भी जैसे 15 मिनट टाइम है. अच्छा, मिस्टर धीरेश का क्वेश्चन ये है कि जीबीपी और जेपीवाई या यूरो को पहले क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपका ये जीबीपी आईएनआर है, मतलब कितना आईएनआर पर जीबीपी. तो क्या है ना, ये बेसिकली जो करेंसी ट्रेडिंग है, ये वेस्ट से आया था. सो इसके लिए उन लोगों का कन्वेंशन ये रहा है कि टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी फर्स्ट और बाकी सब करेंसी बाद में. तो एक कन्वेंशन ये बन चुका है. इट्स मोर अ कन्वेंशन. विद टाइम एज द वर्ल्ड बिकम्स मोर ईस्टर्न ड्रिवन, भारत, चाइना, रशिया जैसे जैसे डोमिनेट करेंगे अफ्रीका एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, अब देखोगे कन्वेंशन बदलेगा. बट अभी फिलहाल ये कन्वेंशन है कि यूरो, जीबीपी, जेपीवाई वो लोग पहले आते हैं और बाकी करेंसीज जो है उसके मुकाबले. अच्छा, आप ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन का बात करो तो उसमें क्या है कि आप, हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ. वी हैव अ वेरी लाइव एंड एक्टिव टेलीग्राम चैनल ऑन on currencies. In fact, it could be the country's most active and widely followed telegram channel. तो उसका नाम है करेंसी कॉर्नर एट द रेट कोटक सिक्योरिटीज. जस्ट आप टाइप करोगे ना करेंसी कॉर्नर एट द रेट कोटक सिक्योरिटीज विद द कोटक सिक्योरिटीज का एम्बलम, द लोगो, तो आपको आप वहाँ पे ऐड हो सकता है. और इफ यू आर ऑलरेडी देयर, इट्स फैंटास्टिक. इन केस यू आर नॉट, आप वहाँ पे आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो. इट इज एट नो कॉस्ट. it's free of cost for anybody. It is open to all. और उसमें we keep sharing ये वीडियोस जादव जी की, हाउ यू कैन डू लाइव ट्रेडिंग ऑन कोटक नियो ऑन करेंसीज. मतलब एनालिसिस के साथ मोबाइल में आप कैसे इसको कर सकते हो, एनालिसिस फीचर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो. वी ऑलरेडी हैव अपलोडेड दोज वीडियोस. सो वंस यू ये log into the telegram channel, you will be able to see them, and we will be uploading more videos on that कि ये ट्रेडिंग कोटक सिक्योरिटीज का जो मोबाइल ऐप है उससे कैसे किया जा सकता है. रोहित जी का क्वेश्चन ये है, टू नो द एक्सपेक्टेड ओपन प्राइस इन द मॉर्निंग इन करेंसी विच इज द बेस्ट. ओके, गुड क्वेश्चन. देखिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, जैसे मैं फॉरेक्स लाइव दिखाया, फॉरेक्स फैक्ट्री दिखाया, ट्रेडिंग व्यू दिखाया, तो वहां पे जाके आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो कि अभी मान लीजिए 8.55 को यूरो डॉलर कहाँ पे चल रहा है, तो आप एक्सेल शीट में डाल दिए. फिर यूएसडीआईएनआर का क्या है कि देखिए, यूएसडीआईएनआर का ट्रेडिंग भी इंटरनेशनली चलता रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एनडीएफ मार्केट, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स. तो उसके आपको एक्सी.com या barchart.com, यहाँ से आप अगर गूगल करोगे ना USDINR, investing.com, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा. तो वो दोनों रेट आप डालोगे तो आपको स्पॉट रेट मिल जाएगा, यूरो आईएनआर का क्या चल रहा है, जीपीएनआर का क्या चल रहा है. तो एक ओपनिंग का एक इंडिकेशन मिलेगा आपको. मिस्टर तथागत का क्वेश्चन है, व्हाट टू फॉलो फॉर जेपीआईएनआर. जेपीआईएनआर के लिए देखिए, इसमें ना यूएसडी जेपीवाई और यूएसडीआईएनआर, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है फ्रॉम यूरो आईएनआर और जीपीआईएनआर. इसमें क्या क्या होता है कि आपको USDINR divided by USD JPY into 100. Again, USDINR divided by USD JPY by 100. इसके लिए अगर USD JPY राइज करता है ना और USDINR इज फ्लैट, तो JPINR का डाउनवर्ड मूव होता है. इट्स उल्टा, USD JPY एंड JPINR जस्ट ऑपोजिट.
अगर ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा अगर USDINR इज फ्लैट. अगर USD/JPY का एक्सपेक्टेशन इज डाउनवर्ड, JPYINR will move up if the USDINR is flat. So that is the thing. उसके लिए आप बेसिकली आई वुड से देखिए USD/JPY में US 10 ईयर यील्ड्स, मतलब JPYINR के लिए US 10 ईयर यील्ड्स, तो ट्रेडिंग व्यू में जाके ना थोड़ा सा स्टडी कीजिए आप, US 10 ईयर यील्ड्स को प्लॉट कीजिए और JPYINR को प्लॉट कीजिए या USD/JPY को प्लॉट कीजिए, तो आपको एक रिलेशनशिप दिखेगा कि अगर जब US 10 ईयर यील्ड्स है कंटिन्यूअसली राइजिंग, तो जनरली USD/JPY tends to go up, which means ENR tends to fall unless USD/INR is making big moves. तो US 10 ईयर, USD/JPY और उसके साथ एक रिस्क एपेटाइट, मतलब जो ग्लोबल इक्विटी ट्रेंड है अगर वो नीचे जा रहा है, अगर इक्विटी मार्केट्स आर फॉलिंग, देन USD/JPY कैन आल्सो फॉल, सो वाइस वर्सा. तो ये कुछ मार्केट्स है जो जिसको आप रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो थ्रू चार्ट्स, एंड देन यू कैन गेट अ व्यू कि कब ये JPY/INR को ट्रेड करना चाहिए. कंबाइंड प्रीमियम चार्ट, मिस्टर संजय का क्वेश्चन है, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट ऑफ ऑप्शन वेयर वी कैन गेट. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन समझा नहीं. अच्छा, आई एम अश्यूमिंग आप पूछ रहे हो कि अगर आपको ऑप्शन का चार्ट, मतलब अगर कॉल पुट ऑप्शन है उसका जो प्रीमियम है उसका अगर चार्ट को आप प्लॉट करना है, उसमें अगर एनालिसिस करना है, तो आप वो कोटक नियो का साइट में आप कर सकते हो. ऑप्शन चेन में जाके जो भी ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करो तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा. तो बिकॉज GPINR, EURINR, JPYINR उतना लिक्विडिटी ऑप्शंस में है नहीं, इसके लिए दैट विल बी रेलेवेंट फॉर USDINR ट्रेडिंग. तो जब ये मैंने कवर किया है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो, जब मैं USDINR का ट्रेडिंग के बारे में मैं बात किया, तो वहां पे आई हैव शोन कि आप कैसे ऑप्शन चार्ट्स का आप एनालिसिस कर सकते हो, ऑप्शन प्रीमियम का जो है आप टेक्निकल एनालिसिस इसमें कर सकते हो आप. हाँ, कोटा नियो पे आप डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो. तो उसमें ही आप बटन है बाय एंड सेल, राइट फ्रॉम द चार्ट यू कैन ट्रेड. मतलब आपको अलग से ट्रेडिंग इंटरफेस में जाके ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, चार्ट से ही आप कोटा नियो पे मोबाइल या ऑन द डेस्कटॉप ऐप आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो. हाँ, स्पॉट रेट्स आर नॉट अवेलेबल. तो USDINR के लिए आपका स्पॉट रेट आपको चाहिए, तो आप जो इंटरनेशनल साइट से उसको ट्रैक कर सकते हो. वो एक्चुअली इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज वो इंटरबैंक से आता है, बट यू कैन गेट अ रफ आइडिया एज टू व्हाट इज हैपनिंग, स्पेशली ये 5 बजे के बाद जब हाँ हम लोग का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा. तो investing.com, XE.com, barchart.com, तीनों को दो के आपको एक एक ट्रेंड पता चलेगा कि कहाँ पे है. There is a question from Mr. Yashwant. He asked, if I am not wrong, for currency trading, we have to rely more on global news and economic factors. नहीं, यशवंत जी, मिक्स देम बोथ. क्योंकि देखिए, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यू जस्ट कैन नॉट मिक्स एवरीथिंग. इट्स लाइक कुकिंग. If you are an expert cook, you'll be able to experiment and mix things. But when you are starting off, you have to stick to a proper, well-defined path. वो क्या है, एक टूल को आप चूज करो. तो अगर मुझे दोनों में से चूज करना होगा कि पहले कौन सा मैं सीखूं और अप्लाई करूं, तो मैं बोलूंगा टेक्निकल एनालिसिस. क्यों? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल. टेक्निकल एनालिसिस में वाई नहीं पूछा जाता. वाई क्यों हुआ, क्यों हो सकता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. क्या इज इम्पोर्टेंट, मतलब क्या हो रहा है, नॉट क्यों हो रहा है. राइट? तो आप क्यों, आपका एनालिसिस गलत जा सकता है. आपको अगर फंडामेंटल्स के ऊपर अच्छा ग्रिप नहीं है तो आपका क्यों गलत जा सकता है. बट आप अगर क्या पे आप अगर फोकस करोगे,
तो उस वो शायद आपको राइट ट्रैक में रखेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, इसके लिए एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, आपको एक स्टॉप लॉस बताया दे कि क्या हो रहा है, कब पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताता है। और दूसरा है कि कब गलत चीज से आप एग्जिट कर सकते हो, वो भी आपको बताया था बिकॉज ऑफ लेवल्स एंड स्टॉप लॉस। इसके लिए मैं बोलूंगा आपको को स्टार्ट करना है विद वन टूल विच यू वांट टू अप्लाई एंड लर्न, टेक्निकल एनालिसिस। जैसे आप उसमें माहिर हो जाओ, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द जो मैंने दिखाया कि आज का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आया, कितना कितना डिविएशन है एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल के बीच, तो उसका उतना ही इम्पैक्ट होगा। और उसके साथ कि अभी एक ब्रॉडर न्यूज फ्लो क्या है, तो इसलिए मैं तीन साइट्स दिखाया, फॉरेक्स लाइव फॉर न्यूज एंड जो इंडिकेटर्स आएगा उसका रियल टाइम अपडेट, फॉरेक्स फैक्ट्री फॉर क्या इकोनॉमिक कैलेंडर है, और थर्ड है ट्रेडिंग व्यू फॉर इंटरनेशनल करेंसीज का स्पॉट चार्ट, फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स चार्ट्स के लिए एंड ट्रेडिंग के लिए कोटक नियो। ये चार चीज आप कंबाइन कर से रोज कर सकते हो, तो आपको एक पैटर्न आपका बन जाएगा ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। और फिर आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिले तो यू डू अ ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है जो पोजीशन साइज शुड नॉट बी लार्ज, कीप इट स्मॉल, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल करेंसीज है। देखिए करेंसी में लिक्विडिटी इश्यू है नहीं, क्योंकि फॉर अ इंडिविजुअल इट डजंट मैटर, क्योंकि फॉर अ हेज फंड और इंस्टीट्यूशन आई कैन अंडरस्टैंड, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिप्लॉय कर रहे हो। फॉर अ इंडिविजुअल इट्स नॉट अ इशू, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग। मैं यूरोआईएनआर जीपीआईएनआर का बात कर रहा हूँ। जीपीआईएनआर में लिक्विडिटी थोड़ा सा थिन है, बट यूरोआईएनआर जीपीआईएनआर में मंथली फ्यूचर्स में काफी लिक्विडिटी। USDINR is exceptionally liquid on futures and options both. A question from Miss Ria. She asked that today DXY was rising due to Euro and GB, but yield was down. And USDINR was also down ड्यू टू दैट। यस, ये जो पॉइंट था जो हम लोगों ने आज फ्लैग किया कि देखिए आफ्टर द रिलीज ऑफ द यूरोजोन पीएमआई, मतलब यूरोप से जो पीएमआई डेटा आया, दैट वाज क्वाइट बैड, और जो वो एक्चुअली द रिस्क ऑफ रिसेशन इज इंक्रीज, जिसके कारण एक सेफ हेवन डिमांड आ गया ऑन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो जैसे ही बॉन्ड प्राइस ऊपर गया, यील्ड पुल बैक। तो बिकॉज यूरोप से खराब डेटा था, तो नेचुरली द यूरोपियन करेंसीज गॉट हिट। तो डॉलर इंडेक्स which is basically European currencies के against the US dollar, so it rose. But USDINR में आज पहला RBI का selling था, we suspect it was a RBI. These things cannot be confirmed, but we suspect it was a RBI selling in the morning. उसके बाद there was some corporate flow. एंड एक्सपेक्टेशन ये था कि 80 टू 90 का जो सपोर्ट है वो होल्ड करेगा, और वहां से एक बार बाउंस भी वो देने का कोशिश किया, बट देन इट केम अंडर मोर सेलिंग प्रेशर, और जैसे 80 टू 85 वो टूटा स्पॉट में, तो लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस वर हिट इन द इंटरबैंक ऑन द एक्सचेंज, एंड देन वी सॉ बिग मूव ऑन द डाउन साइड। तो हो सकता है वंस दीज लॉन्ग पोजिशंस आर फ्लश्ड आउट, तो वापस वी कैन सी अ पुल बैक इन यूएसडी, मतलब up move in the USDINR, क्योंकि US dollar index is moving higher. We'll take one final question. Can currency trading be a part-time thing, or does it need a full-time job? देखिए, ट्रेडिंग पर से आप करेंसी करो, कमोडिटी करो, इक्विटी करो, कंबाइन करके करो, कोई इशू नहीं। ट्रेडिंग पर से मैं बता रहा हूँ, सेगमेंट कैन बी डिफरेंटली अप्रोच, बट अगर ट्रेडिंग पर से आप अगर करते हो, इट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 20 years in the market,
I have not seen a part-time good trader, because I have interacted with many institutional traders, individual traders over the last 20 years across segments. I have rarely seen a trader who is doing it part time and successful. क्योंकि ये मैं बोला ना, it's like a war. Have you ever seen a part time soldier or a part time fighter pilot जो सुबह पिज्जा में काम करता है, शाम को जाके रफेल उड़ाता है? नहीं होता है. तो इसके लिए ट्रेडिंग पर से आप अगर करते हो, इट्स माय ओपिनियन दैट इट शुड बी अ फुल टाइम जॉब. अदरवाइज डू इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में आपको फुल टाइम जाने का जरूरत नहीं. देयर आर मेनी एवेन्यूज लाइक म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा इफ यू डोंट वांट टू इवन पिक स्टॉक्स. बट ट्रेडिंग आपको अगर करना है, इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, आपको फुल टाइम उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा. हाँ, उसमें आप अगर फुल टाइम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों सेगमेंट को 24 आवर्स देखो, नो. बट ओवरऑल जो ट्रेडिंग है, आप पहले फिक्स कर लो आप कौन सा मार्केट में आप कंफर्टेबल. तो आप अगर इक्विटी मार्केट में आप अगर कंसिस्टेंटली पैसा आप बना रहे हो इन इक्विटी डेरिवेटिव्स, फिर आप करेंसी में आ सकते हो, फिर आप कमोडिटी में डाइवर्सिफाई कर सकते हो. बट अगेन, एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, ट्रेडिंग इज डेफिनेटली अ फुल टाइम प्रोफेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट टाइम से होता नहीं है. पार्ट टाइम से इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, इन माय ओपिनियन. सो थैंक यू ऑल. Thank you for attending in today's session. We'll be back soon with another episode on currency trading.